Hello students, this is Rahmat Khan from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well and studying regularly. Dear students, the time is passing by and I request every one of you to study regularly and watch our complete video. And if you don't understand anything, please pause it and watch it again. Dear students, today we are going to learn one of the interesting chapter of civics, chapter 6, that is political parties. Really a very interesting chapter. Okay, so what we are going to cover in this video lecture, this is the part 1, and in this part 1 we are going to learn why do we need political parties. Okay, we'll find out the answer why we need political parties. Second, meaning of political parties. What is actually a political party? Okay, features of political party. Okay, necessity of political party. Why it is necessary? Why it is compulsory? Okay, होनी चाहिए क्या political party? Why? We'll find it out. And in the end, we are going to discuss about how many parties should we have. कितनी पार्टी होनी चाहिए. So dear students, let us start with the first one, that is why do we need political parties. Now if we open our textbook, page number 72, there is a heading, why do we need political parties? And the beautiful thing is that in India, when we talk about democracy, when we talk about constitution, very few people know about it. But when we talk about political parties, might be most of the people know about it. Okay, in our textbook page number 72, in the first paragraph, if we can see that if you go to the rural areas, okay, अगर हम गांव वगैरह में जाएं, and if you ask less educated people who are not that literate, and if you ask them a question, what is democracy, what is constitution, might be they might not answer you. उनके पास जवाब नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है. उन्होंने शायद ये वर्ड्स पहले बार सुने होंगे. पर अगर आप उनसे पूछेंगे, इफ यू आस्क देम व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, माइट बी दे आंसर यू. ओके, दे माइट नो द लीडर्स. अगर उनसे आप पूछें मोदी जी कौन है, इफ यू आस्क हिम हु इज राहुल गांधी, दे माइट नो, but they might not know what is democracy and what is constitution. Now this points tell us that why political parties are so important, why they are famous. Okay, one more thing, in India what happens is most of the people, especially the people who are less educated, for them democracy and constitution means political parties. उनके लिए वो ये मान लेते हैं, okay, if anything is not going properly, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, they blame directly the political parties. Okay, and in the last paragraph of this title, that is why do we need political parties, we can see therefore it is natural to ask, do we need political party. तो इसी वजह से ये जरूरी है, क्या political party जरूरी है. Okay, about 100 years ago, 100 साल पहले कुछ ही देशों में political parties थी. Okay, पर अगर आज की बात करें, कुछ ही देश हैं जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. इट्स टोटली ऑपोजिट एंड इट हैज बिकम ओमनिवरेंट. व्हाट डू यू मीन बाय ओमनिवरेंट? इट इज गेटिंग फेमस, स्प्रेडिंग ऑल ओवर. हर जगह ये आपको मिलेगा. दैट इज ओमनिवरेंट. दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ फॉर दैट फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? सो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. Okay, same page number 72, the next topic, the meaning. In that it's already written, a political party is a group of people who come together. So a political party is a group of people who come together to contest election. What they first do is they come to contest election. चुनाव लड़ने के लिए वो आते हैं, इसी वजह से वो एक बनकर आते हैं, and hold power in the government. And they hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. A political party, जब भी अगर आप एक political party को देखोगे बच्चों, तो एक political party का एक goal होता है. वो इसलिए political party नहीं बनाते हैं कि करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो political party बना लेते हैं. एक political party जब हम बनाते हैं तो they have a vision, उनकी एक सोच होती है, वो समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं. They want to bring changes. They have
एम्स, गोल्स, ओके, जैसे हर एक इंडिविजुअल का, हर एक बच्चे का एक गोल होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे कम टुगेदर। व्हाई दे कम टुगेदर? बिकॉज जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होंगे उन सबके गोल उन सबसे मैच खाते हैं, इस वजह से वो सारे साथ में आते हैं उस गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यस, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, आप बदलाव तब ला सकते हो जब तक आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करो। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड दैट्स व्हाई यू कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग। They agree on some policies and programs. Okay, they have their policies and programs. क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, that is the policy and programs for society with view to promote collective good. कलेक्टिव गुड का मतलब ये है उस समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, दैट इज नॉट फॉर फ्यू पीपल, वो किन्हीं लोगों के लिए नहीं है, दैट इज कलेक्टिवली फॉर एवरीबडी, सबके लिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव गुड। ओके, दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब ये सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, जो चीज वो बदलाव लाना चाहते हैं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे विन द इलेक्शन। अगर वो चुनाव जीतेंगे नहीं तो that means there is no power, and when there is no power you cannot do any changes for the betterment of society. So the meaning of political party, the first paragraph, complete paragraph हमें mark करना है बच्चों। Do remember when we are learning this chapter, your textbook must be open. आपकी टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए और जो भी मैं बोलता जा रहा हूं मार्क करने के लिए, everything you need to mark. So in the first paragraph all lines are very important, you have to mark all this, that is the meaning of political parties, right? Now let's move ahead, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। okay, why do we need political parties? We have answered this, but we will go again deep into it. okay, आगे और देखते हैं कि क्यों जरूरत है political parties की। now to see that we need to see the functions of political party, कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। एंड नाउ द फर्स्ट फंक्शन, ऑल द फंक्शंस वी हैव इन द टेक्स्ट बुक एंड वी हैव टू मार्क एवरीथिंग। ओके, सारे फंक्शंस हमें मार्क करने हैं। तो द फर्स्ट फंक्शन हियर इज कंटेस्टिंग इलेक्शन। पहला फंक्शन क्या है? कंटेस्टिंग इलेक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by the members. Okay, the leaders, political parties. मतलब जो भी चुनाव लड़ रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा, इसको टिकट मिल गया, तो वो टिकट देता कौन है? Now this is a best question. ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि टिकट देता कौन है? There are two things here. Okay, now in some countries like USA, United States of America, the party members and the supporters, they select the leaders. क्या बोला बच्चों मैंने? कि यूएसए के अंदर जो पार्टी मेंबर्स हैं और जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो मिलके चूज करते हैं कि कौन चुनाव के लिए खड़ा होगा। बट इन इंडिया इट इज द लीडर्स हु चूज द मेंबर्स हु गिव द टिकट्स। ओके, एंड डू यू नो, जो यूएसए का चीज है, जो यूएसए फॉलो करती है, उस चीज को हर एक देश फॉलो करना पसंद करता है, बिकॉज दे थिंक दैट इज द बेटर वे। ओके, दैट इज द पार्टी मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स कंबाइन, बोथ दोनों मिलके अगर सेलेक्ट करें तो एक बेटर ऑप्शन होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन, नाउ दिस पार्टीज व्हाट दे डू इज दे ट्रेन द पीपल। वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, हाउ टू कंटेस्ट। ओके, एंड दे गाइड देम एवरीथिंग, and like this they contest election. Parties choose their candidate to contest election. This is our first function we can see, right? Second is put forward different policies and programs. Second point क्या है? Put forward different policies and programs. Dear students, what do you mean by put forward different policies and programs? बच्चों, जब भी एक political party when they stand for the election, जब वो चुनाव के लिए खड़ा होते हैं, they have their policies and programs. मतलब वो आपको ये वादा करते हैं, अगर आप हमें चूज करोगे तो we will bring this changes in the society. Okay? For example, उदाहरण देता हूं मैं आपको, पार्टी ए एक पार्टी है, ओके, जो कह रही है इफ यू सेलेक्ट मी, अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं पूरा एजुकेशन का सिस्टम बदल दूंगा, ओके, सबको नौकरियां दूंगा. देयर इज पार्टी बी विच सेज अगर आप मुझे चूज करोगे तो मैं देश में डेवलपमेंट लाऊंगा, मैं यहां पर इंडस्ट्रीज लाऊंगा, मैं
हर एक लड़की को फ्री एजुकेशन दिलवाऊंगा, दिस इज पार्टी बी। तो व्हाट हैपेंस इज, जब पार्टी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है, नाउ पीपल डिसाइड कौन सी पार्टी को चूज किया जाए। ओके, दैट इज देयर विश, वो उनकी विश है, उनको जो अच्छा लगता है वो उनको वोट करेंगे और उनको चूज करेंगे। बट ये ऑप्शन सामने कौन रखता है? दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। सो पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, बाय लुकिंग एट दिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स द पीपल, द सिटीजंस चूज देम, और उनको वो चूज करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट, ओके, वी हैव द थर्ड पॉइंट, दैट इज political parties play a decisive role in making laws for a country। बच्चे, political parties play a decisive role in making laws for the country। Now first question, अपने आप से पहले पूछिए आप कि laws बनते कहां पर हैं? किसी ऑफिस में बनते हैं? No, it is in the legislature। We can see here, laws are debated and passed in the legislature। laws ऐसे ही पास नहीं किए जाते हैं, legislature के अंदर there are debates। Some people agree, some disagree, they fight on it, they debate on it, after that they come to conclusion, when they get the majority of support, then only it becomes a law। Okay, now since most of the members belong to respective party, they tend to go by the direction of party leadership irrespective of the personal opinion। तो leaders जो चाहते हैं उसी को सारी पार्टी एक्सेप्ट करती है। ओके, एंड दे मेक द डिसाइसिव रोल, और उन्हीं की वजह से लॉज बनते हैं। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। ओके, वी नीड टू मार्क ऑल द पॉइंट्स। राइट, वी हैव द फोर्थ पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यस, आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, व्हेन दे गेट सपोर्ट मेजोरिटी, ओके, जब उनको मेजोरिटी मिलता है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, and after forming the government they run the government। okay, policy decisions are taken by the political executive who represent the political parties। और जब वो जीत जाते हैं तो वो देश को चलाने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं। राइट, parties recruit leaders, train them, become ministers to be able to run the government। they train them, they select the ministers, और उनको वो अलग अलग पोस्ट देते हैं, and they run the government। This is our fourth point, that is political parties form and run the government। all these points are same as it is in the textbook and we have to mark everything। okay, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। next fifth point we have the fifth point, that is act as opposition, the role of opposition। what do you mean by opposition party? opposition party is that party that has not come in majority, जो चुनाव हार जाती है, मेजोरिटी में नहीं आती है। ओके, द पार्टी हु विंस द मेजोरिटी एंड रूल्स द गवर्नमेंट, वो पार्टी जो चुनाव जीतती है, मेजोरिटी फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, बिकॉज दे आर गोइंग टू रूल द गवर्नमेंट। एंड दोज पार्टी हु डोंट फॉर्म द मेजोरिटी, दे आर कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी। नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर लाइक अ क्रिटिक। ओके, जो गलतियां निकालते रहते हैं, दैट इज, अगर वो दे कीप एन आई, दे कीप अ वॉच ऑन द गवर्नमेंट, जो रूल कर रही है उन पे नजर रखती है, और अगर कोई भी गलती की, दिस ऑपोजिशन पार्टी रेज द क्वेश्चन, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज द रूलिंग पार्टी इज अलर्ट। उनको पता होता है कि कोई है जो हमारा मुद्दा उठाएगा, अगर हम कुछ गलत करें वो रेज करेगा, एंड दैट्स व्हाई द रूलिंग पार्टी works properly। so the opposition party is very important because it keeps eye on the ruling party, and if they do something wrong then they raise the question, which is very important in democracy। right, आगे बढ़ते हैं। party shape public opinion, next point जो हमारा है, that is party shape public opinion। बेटा, there are lot of people who have lot of wishes। okay, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पे हर एक इंसान अलग अलग चीज चाहता है। दे डिमांड डिफरेंट थिंग्स, दे हैव डिफरेंट विशेस, एंड दैट्स व्हाई दे वोट फॉर दिस कैंडिडेट्स, बिकॉज व्हेन दे वोट फॉर दिस कैंडिडेट्स दे बिलीव दैट आफ्टर देयर पार्टी विंस दे विल हेल्प देम आउट थ्रू दैट सिचुएशन। उनको वो मदद करेंगे जो प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, और उन्हीं के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, खड़े उतरना उस पे, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों का ओपिनियन है, जो लोग चाहते हैं, उसके हिसाब से ही पार्टीज वर्क करती हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ओपिनियन इज राय, जो लोग चाहते हैं,
और उसके ऊपर खड़ा उतरना, उसको सपोर्ट करना, हेल्प करना, दैट इज द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस. सो फार वी हैव डिस्कस्ड दिस मच फंक्शंस, है ना. आगे बढ़ते हैं बेटा टू द लास्ट फंक्शन वी हैव, दैट इज parties provide access to the government machinery. Okay, this is also very important. All functions are very important, right? So this is our last function. Okay, so what is said ki parties provide access to government machinery. Okay, there are a lot of schemes and there are a lot of machineries. Okay, if you go to government hospitals, okay, if you go to other places, there are a lot of schemes. बहुत सारे स्कीम्स आते हैं. अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको फ्री एजुकेशन मिलेगा. ओके, अगर 15 साल का बच्चा है उसको इतनी सारी चीजें मिलेगी. एंड इफ किसान है, किसान को ये मुआवजा मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे. अगर कोई ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, उसको आपका पर मंथ 1000 रुपीज आपके अकाउंट में आएगा एज अ पेंशन. ओके, दिस ऑल आर स्कीम्स. ये सारे स्कीम्स हैं. और डू यू नो द पीपल अप्रोच फर्स्ट द लीडर. गवर्नमेंट का मतलब उनके लिए पॉलिटिकल लीडर है. कोई भी आम इंसान के लिए, द पीपल हु आर देयर, उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज. एंड पॉलिटिकल पार्टीज इज द लीडर. दे अप्रोच द लीडर एंड द लीडर विल टर्न हेल्प देम आउट. और लीडर उनकी मदद करता है. जो भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो उनको दिलाता है, और जो भी मशीनरीज अवेलेबल है गवर्नमेंट की, जहां उनको जरूरत है उनको अवेलेबल कराता है. सो दैट इज पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड द स्कीम्स, एंड दिस आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. Now we can say that why do we need political parties? Now because of all these functions, this shows the importance of political parties. So dear students, before you move on, आगे बढ़ने के पहले I request you on page number 74, page number 74, okay, just where there is a third point, जहां पे हमारा third point है, that is making laws, वहां पर ठीक ऊपर आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए. दिस इज अ इंटरनल क्वेश्चन. व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? Why we need political parties, right? And the answer is from third point, fourth point, fifth point, sixth point and seventh point. Okay, all these points answer why we need the political parties. ठीक है, तो इसको आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, यस, लेट्स मूव ऑन. Next question we have is the necessity. Next topic in the textbook we have necessity of political party, right? So political parties are necessary condition for a democracy. Why? So we have a question here कि political parties जरूरी क्यों है? नहीं हो तो what will happen? Let us answer this question. This is very important for us, okay, which we have already in our textbook. We can see, okay, second paragraph of necessity. Every candidate in election will be independent. If there is no political party, what will happen is every candidate will be independent. इसका मतलब क्या है? When we talk about political parties, political party is a group of people. Political party की जब बात कर रहे हैं, वो group of people है जो सब साथ में आके एक गोल को लेके वर्क करते हैं. पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगा? अलग अलग इंसान इंडिविजुअल तौर पे इलेक्शन लड़ेगा, और इसके डिसएडवांटेजेस हैं. बिकॉज ही विल जस्ट फोकस ऑन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जहां से वो लड़ रहा है वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी जगह के बारे में सोचेगा. ही वोंट थिंक अबाउट द होल नेशन. वो पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज लुक फॉर द कंट्री, पूरे एंटायर कंट्री और सबके लिए सोचती है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीज एंड डेमोक्रेसी. ऑल डेमोक्रेसीज हैव पॉलिटिकल पार्टीज. Democracy is meaningless if citizens do not have choice between parties in election. अगर political parties नहीं होगी तो individual खड़ा होगा and choices will decrease, right? So यहाँ पर हम देख सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, a party of order or stability and party of progress or reform are both necessary elements of healthy state of political life. ऐसा क्यों कहा? Because when individual contest the election, जब एक इंसान अकेले अकेले खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, there won't be a stability. स्टेबिलिटी का मतलब सरकार कभी भी गिर सकती है,
ओके कभी कोई इंडिविजुअल किसी और का साथ दे रहा है, कभी कोई इंडिविजुअल किसी और का साथ दे रहा है, और ऐसे करके शायद सरकार कभी भी गिर सकती है एंड देयर वोंट बी स्टेबिलिटी, सरकार संतुलित नहीं रहेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी, ओके। आगे बढ़ने के पहले देयर आर फ्यू और मोर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो वी हैव हियर इन दिस पैराग्राफ, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes, the utility will remain uncertain, मतलब कोई किसी को गारंटी नहीं देगा हम ये चेंजेस करेंगे वो चेंजेस करेंगे, दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन वी टॉक अबाउट, वी हैव कांग्रेस, वी हैव बीजेपी, वी हैव आप पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वी हैव लॉट ऑफ पार्टीज, राइट, दे आर बिग पार्टीज, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, ग्रुप है, तो जब ये लड़ते हैं तो एज अ होल फुल कंट्री के लिए वो सपोर्ट करते हैं, पर मान के चलिए अकेला इंडिविजुअल जब फाइट कर रहा है तो वो पूरे देश के लिए थोड़ी सपोर्ट करेगा, वो जहां से लड़ रहा है वही जगह के बारे में सोचेगा, और इसके वजह से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, दैट इज पेज नंबर 74 पे बात कर रहे हैं, okay, the last paragraph we have, okay, representative democracy. When we talk about representative democracy, what is representative democracy? Okay, बच्चे, representative democracy का मतलब है in our democracy there are billions of people, और सारे millions of people individually अपने लिए लड़ नहीं सकते, that's why we select our leaders and those leaders are our representative and they form the government and they run the government, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी जो आपका देश चला रहे हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर सिलेक्टेड बाय अस, राइट। सो लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स they need some agency to gather different views of various issues and formulate policies. जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो हम जानते हैं हर एक की सोच एक नहीं होती है, एवरी इंडिविजुअल थिंक डिफरेंटली। नाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव होने जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, राइट। People need some ways to bring various representatives together so that the responsible government can be formed. Okay? हम सब जानते हैं बच्चों, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, अब वो चाहते हैं जो उन्हें चाहिए वैसी गवर्नमेंट फॉर्म हो, and this is only possible when we have representative democracy. A mechanism is needed to make policies, implement them, justify or oppose them. In democracy, if we like some policies, we can respect. अगर हमें नहीं पसंद है, we can oppose it. Oppose का मतलब है विरोध करना. In democracy, it is allowed. If you don't find, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, you can raise your voice against it, and that is better. Okay? Political parties fulfill this need of every representative democracy. एक तो जो रूलिंग पार्टी है उस देश को चलाती है, और जो ऑपोजिशन पार्टी है अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है उसको ओपोज करने का काम करती है। सो दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।